this module, we are going to cover and discuss the last topic of social emotional learning. We know that there are 5 main aspects of social emotional learning, relationship skills being the last one of them. Now, what are the aspects of relationships forming or relationship building, we can say? The first aspect is building those relationships. How do those relationships build? They are built by the parents, they are built by the caregivers or teachers, initially by the parents. So once they have laid those foundations for relationship skills, we move on to the second aspect, which is enabling those relationships, or when children learn to form relationships on the basis of the building or the foundation that has been laid. The third aspect is maintaining. अब वंस क्या हुआ है कि बिल्डिंग और एनेबलिंग हो गई है, तो अब हम मूव ऑन होते हैं मेंटेनिंग की तरफ. मेंटेनिंग में 2 एलिमेंट्स आते हैं. नाउ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मेंटेनिंग इज टू मेंटेनेंस and the second one is sustainability. Maintenance implies that the child learns to preserve and protect healthy relationships in his or her life. Then sustainability implies that during the relationship, if there are any difficulties or there are hard times, the child is able to overcome those difficulties and then move on towards a healthier relationship in the same manner. That is part of maintenance or maintaining the relationship. The last one is the outcome. Now, why do we build all the above? We build all the above to have a positive outcome for that relationship. For example, a positive outcome can be a culture of respect. It can be equity and fairness, encouragement, communication, tolerance, patience. And if we talk about a larger scale, it is reflected as responsible global citizenship. Now, let us look at the theoretical foundations of relationship building or those skills. The main theory that provides those foundations is the attachment theory. And attachment theory was given by John Bowlby. John Bowlby का एक बड़ा मशहूर कोट है जिसमें वो कहते हैं कि the propensity to make strong emotional bonds to particular individuals is a basic component of human nature. Now, अब इससे हमें यही पता चला है कि जो भी ह्यूमन नेचर है उसके अंदर एक ऐसा इंट्रिकेट कंपोनेंट है, इन बिल्ड कंपोनेंट है, दैट रिक्वायर्स द ह्यूमन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद समवन, और इस इमोशनल बॉन्ड को वो सीक आउट करता रहता है इन हिज और हर लाइफ. सो what are the main ideas of his theory? What attachment theory implies in terms of relationship building skills in children? The point to be noted over here is also that in 2002, a survey of psychologists was conducted in which the review of journal Psychology, John Bowlby was ranked as the 49th most influential psychologist of the 20th century. Now, there are 2 types according to the attachment theory. There are types of the relationship forming or building. The first one is primary and the second is secondary. Primary relationship या primary बॉन्ड बच्चे का उसके साथ होता है जो प्राइमरी केयर गिवर होता है. इन मोस्ट कॉन्टेक्चुअल टर्म्स या मोस्ट सोसाइटीज़ हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी बॉन्ड है वो मदर के साथ होता है या जो भी इमीडिएट उसका केयर गिवर होता है उसके साथ होता है, और ये ओवर द टाइम डेवलप होता है. देन देर इज़ अ टाइम व्हेन द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग अप, ही और शी डेवलप सेकेंडरी बॉन्ड्स, और ये सेकेंडरी बॉन्ड्स वो होते हैं जैसे इट कैन बी ए फादर, इट कैन बी अदर एक्सटेंडेड फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, कज़न्स और सो ऑन सो फोर्थ. तो ये सेकेंडरी बॉन्ड्स भी आहिस्ता आहिस्ता से फॉर्म होते हैं. एक मिसकंसेप्शन है कि द मोर टाइम यू स्पेंड विद द चाइल्ड, के जितना ज़्यादा बच्चे के साथ वक्त गुजारेंगे वो उसी पर्सन से ज़्यादा अटैच होगा, विच इज़ नॉट ट्रू. अकॉर्डिंग टू जॉन बॉल्बी, क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी. और ये कई दफ़ा हमें देखा भी गया है कि जैसे बच्चे सारा दिन बाज़ मदर्स के साथ होते हैं एंड दे आर अटेंडिंग टू देयर नीड्स ऑफ क्लीनिंग एंड फीडिंग दैम एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल अदर इमोशनल नीड्स, लेकिन होता क्या है कि जब फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब फादर जो है वो घर आते हैं, दे आर वेरी अटैच टू द फादर बिकॉज ऑफ द शॉर्ट क्वालिटी टाइम दे स्पेंड, और द शॉर्ट उस छोटे से टाइम में उनको जिस तरह का फीडबैक और जिस तरह के इंटरेक्शंस मिल रहे होते हैं, दैट इज़ वाई दे गेट मोर अटैच्ड और टू द सेकेंडरी बॉन्ड. और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि प्राइमरी जो बॉन्ड है उसका कोई उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि टाइम डज नॉट मैटर, द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शंस मैटर दैट यू हैव विद द चाइल्ड.
नाउ वी मूव ऑन टू द अटैचमेंट स्टेजेस एंड स्टाइल्स. अब स्टेजेस और स्टाइल्स में क्या डिफरेंस है? स्टेजेस को हम कह सकते हैं कि जिस जिस तरह से रिलेशनशिप की प्रोग्रेशन हो रही होती है या वो प्रोग्रेस कर रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब अटैचमेंट स्टाइल से क्या मुराद है? अटैचमेंट स्टाइल ये होता है कि हाउ वी टेंड टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस और पीपल इन एन इमोशनल वे. हम इमोशनली उसको किस तरह से कंसीव कर रहे हैं, किस तरह से उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं. हाउ वी टेंड टू बिहेव व्हेन इट कम्स टू सर्टेन रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप्स इन जनरल. दैट इज़ अ अटैचमेंट स्टाइल. स्टेजेस में हम देख सकते हैं कि बॉल्बी हैड सजेस्टेड 4 stages. The first one is pre-attachment, indiscriminate attachment, discriminate attachment and multiple attachment. Now pre-attachment में क्या होता है? Pre-attachment में बच्चा अपनी मदर को जो भी immediate caregiver है उसको recognize ज़रूर करता है, but he or she is not that attached to the person right now. उसको smell से या उसको थोड़ी बहुत उसको visual recognition ज़रूर होती है, but there is not that solid form of attachment with that primary bond या primary caregiver आप कह सकते हैं. That is the pre-attachment stage. Indiscriminate attachment में क्या होता है कि जब eventually उसकी feeding और उसकी crying जो भी है उसको सही तरह से respond किया जाता है, उसको उसकी needs को met किया जाता है, तो वो indiscriminately attach हो जाता है. यानी कि हम कह सकते हैं attachment in the making, या वो attachment bond form हो गया हुआ होता है with the primary caregiver. So this is the second stage. The third stage is discriminate attachment. Now this is clear cut attachment. इसमें कोई ऐसी ifs and buts नहीं है. इसमें बच्चा बाकायदा तौर पर एक इंडिविजुअल के साथ डिस्क्रिमिनेट करके अटैच हो जाता है और उसको पता होता है कि व्हेन आई क्राई देयर इज़ समथिंग दैट विल हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. वट एवर इट इज़, वो जिस मर्जी रीज़न की वजह से क्राई कर रहा हो, इट इज़ ड्यू टू अ hunger cry or it is due to a dirty diaper cry, whatever it is, the needs will be met by the primary caregiver. So that is discriminate attachment. फिर उसके बाद जब एडवांस स्टेजेस पर जाते हैं बच्चे, मोर देन 6 months और 7 months, मल्टीपल अटैचमेंट्स करना शुरू कर देते हैं. नाउ मल्टीपल अटैचमेंट से क्या मुराद है कि दे फॉर्म एंड दे लर्न टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स विद मल्टीपल पीपल अराउंड देम, विद द फादर, विद द केयर गिवर्स, विद द ग्रैंड पेरेंट्स, ऑल पीपल अराउंड. और हर एक से उनका एक बॉन्ड जो है वो बड़ा यूनिक टाइप का जो है वो डेवलप होता है. दैट इज़ द 4th स्टेज.